ঠিকাদারকে মারধর এবং তোলা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে আসানসোল পৌর নিগমের কংগ্রেস কাউন্সিলর গোলাম সারবার ও তার অনুগামী দীপক গুপ্তার বিরুদ্ধে। যদিও ঠিকাদার অশ্বিনী চৌরাসিয়া এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেছেন কাউন্সিলর গোলাম সারবার এবং দীপক গুপ্তা। আসানসোল উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কাউন্সিলর এবং তার অনুগামীর বিরুদ্ধে। ঘটনার নিন্দে করেছেন তৃণমূল নেতা তথা পৌর নিগমের মেয়র পরিষদ গুরুদাস চ্যাটার্জি। এই বিতর্কে প্রথমেই শোনাবো যে ঠিকাদার অশ্বিনী চৌরাসিয়া ঠিক কি অভিযোগ করেছেন গোলাম সরবর এবং তার অনুগামী দীপক গুপ্তার বিরুদ্ধে। আমার সঙ্গে আমাকে ডাকলেন, তারপরে গোলাম সরবর আর দীপক গুপ্তা দুজনে মিলে ডেকে ডাকলেন ফোনে কি তুমি আসো। তো আমি 6টার সময় ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে গোলাম সরবরের বাড়িতে, হ্যাঁ, কেটি রোড, হ্যাঁ। তো ওইখানে গেলাম আমি। যাওয়ার পরে আমাকে ওনারা বস করালেন। বস করার পরে বললেন কি একটি লিস্ট বার করলেন। উনি কোথাও থেকে লিস্ট নিয়েছিলেন। তুই তো অনেক টাকার কাজ করেছিস স্যার, তুইকে অত টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি বললাম কী জন্য টাকা দিব? হ্যাঁ, বলছে না দিতেই হবে। তারপর দীপক ফট করে হাত ছেড়ে দিল। তারপরে দুজনে মিলে প্রচুর মারলো, আমার হাত ভেঙে গেছে। গোলাম সরবর, দীপক গুপ্তা, আদার্স লোক আরও ছিল, তাদেরকে আমি চিনি না, বুঝলেন না। হ্যাঁ, তারপরে ওরা কোপাট বন্ধ করে দিল। কোপাট বন্ধ করে আমসো ছটালো, দীপক গুপ্তা আম ছটালো। হ্যাঁ, কি কারণে পয়সাটা চাইছে? দাদাগিরি আর কি, দিতে হবে, কাজ করেছে আমার ওয়ার্ডে, এটাই আর কি। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি, মানে আমার ওয়াইফের নামে লাইসেন্স আছে, আমি দেখভাল করি। হ্যাঁ, মানে কোথাকার কন্ট্রাক্টর দিয়েছিলেন? আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওনার ওয়ার্ডে আমি অনেক কাজ করেছি প্রথমে। ওইটার জন্য ধরুন উনি মাছ খুঁজছে, প্রথমে কাজ আমি করেছি। কি বলছিলেন? হ্যাঁ, টাকা দিতে হবে, টাকা দিয়ে। কি কারণে? এটা তো আমি জানি না, বলছে দাদাগিরি টাকা হলো আর কি, এর মানে তাই হলো। কত টাকা? 8,40,000 চেক নিলেন, জবরদস্তি চেক নিলেন, দেখে পরে চেকও নিয়েছেন, ততক্ষণ ছাড়েন নাই, মেরেছেন। হ্যাঁ, চেক দিয়েছি। চেকটা কেন দিয়েছেন আপনি? কী করবো, আমি একাই, আমাকে 12টা রাত পর্যন্ত এখানে রেখেছেন, 11টা-12টা বেজে গিয়েছিল। আপনি পুলিশকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, পুলিশকে জানিয়েছি, চিঠি দিয়েছি, ডায়েরি দিয়েছি, সব দিয়েছি। আমাকে এগ্রিমেন্টও সই করাইছেন, ফলস এগ্রিমেন্টকে আমি ধার দিয়েছি, এই টাকাটা তুই অতদিন পরে দিবি, ওটা উনি লেখাইছেন, এগ্রিমেন্টও করাইছেন। এখন পুলিশ কি বললো? পুলিশ না নুকুর করছিল, লেকিন আজকে নিয়েছে। আজকে আমাকে জিডি নম্বর দিল। এটাতে জিডির নম্বর তো আমরা জানি না কী মানে হয়, লেকিন চিঠিটা রিসিভ করেছেন উনি কালকে। হ্যাঁ, আজকে জিডি নম্বরটা দিলেন। আপনার নামটা? আমার নাম অশ্বিনী কুমার চৌরাসিয়া, কালীবাড়ি বাজার। এর পরবর্তী পর্যায়ে দীপক গুপ্তার স্টেটমেন্ট অনুসারে যে বক্তব্য উঠে আসছে সেটা, কেন পোস্ট ডেটেড চেক নেব যদি আমরা রংবাজির টাকা নিই, যদি তোলা আদায় নিই তাহলে পোস্ট ডেটেড চেক কেন, এবং স্পেসিফিক করে 8,40,000 টাকা কেন, কি বলছেন তিনি শোনাবো। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर अश्वनी चौरसिया जो मेरे ऊपर में एलिगेशन लगा रहा है, आप पिछले देखिए हम लोग का वार्ड में जितना काम होता था वही करता था, और हमसे हमेशा वो फ्रेंडली लोन लेता था, हमेशा। पिछले आप उसका अगर बैंक का स्टेटमेंट निकाल के देखिएगा पहले का, वो हमेशा हमसे पैसा लिया, हमको चेक में दिया, आप उसको देख सकते हैं, उसका बैंक का स्टेटमेंट खोल के हमेशा हमसे लोन लेता था, हमको देता था। अब लास्ट अभी आप बताइए, वो जो भी हम पर एलिगेशन लगा रहा है कि हम रंगदारी मांग रहे हैं, तो आप लोग तो खुद एक पत्रकार है और पूरे आसनसोल के आवाम देखे कि भारत में पहली बार कोई ऐसा रंगदारी मांगा जा रहा है जिसपे जो एक्यूज है, मैंने जो हम पे एलिगेशन लगा रहा है, वो पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है। एक चेक दे रहा है सितंबर महीना का, एक चेक दे रहा है दिसंबर महीना का। अगर हम रंगदारी लेंगे तो उससे कैश लेंगे, करेंट डेट में चेक लेंगे, पोस्ट डेटेड चेक लेंगे, और भी रंगदारी, इतना तो हम अनपढ़ गवार नहीं है। अगर उससे हम रंगदारी लेंगे तो पोस्ट डेटेड चेक लेंगे कि करेंट चेक लेंगे या कैश लेंगे। और दूसरा नंबर पॉइंट, अगर मान लीजिए उससे हम रंगदारी ले रहे हैं, तो आप बताइए तो वो अमाउंट कितना बोल रहा है? 8,40,000। कहे नहीं वो अमाउंट हम 10 लाख लेंगे, कहे नहीं 5 लाख लेंगे, कहे नहीं 3 लाख लेंगे। यानी जरूर 8,40,000 हम ले रहे हैं, यानी मेरा पैसा उतना निकल रहा है, जितना मेरा पैसा निकल रहा है उतना हम लोग लिया। और तीसरा आप देखिएगा कि रंगदारी का जो एलिगेशन लगा रहा है, तो पेन पेपर में मैंने रंगदारी हम ले रहे हैं, हम कोर्ट का पेपर में बाकायदा वो एक साइबर कैफे में, ठीक है, बैठ के एग्रीमेंट निकल रहा, ई करेक्शन करना है, फिर बेटा को भेज रहा, फिर कर रहा, फाइनल आराम से हम लोग के पास भी सारा एविडेंस है, ठीक है, वीडियो है कि आराम से वो कोर्ट का पेपर में साइन कर रहा है, आराम से चेक में साइन कर रहा है। अगर हम रंगदारी लेंगे तो कोर्ट का पेपर में साइन करा के लेंगे,
अगर हम रंगदारी लेंगे तो पोस्ट डेटेड चेक मिलेंगे। सर, ये सरासर झूठा और बेबुनियाद आरोप है। अभी आप लोग देखे हुए होंगे, अभी हाल में ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हम लोग कितना आराम से जीते हैं, ठीक है। उन लोग तो हरा नहीं पाया। इस तरह का एक चक्रांत करके एक तरह के हम लोग को गुलाम सरवर साहब के नाम को धूमिल करने के लिए इस तरह का झूठा आरोप हम पर लगा रहा है। आप पूरा इंक्वायरी कर लीजिए, क्यों आखिर में उसके साथ हम लोग का हमेशा पैसा का लेन देन हुआ है, हमेशा वो हमसे लेता था, हमेशा हमको वो दिया है। ये लास्ट पैसा था 8,40,000, वो आजकल कर रहा था, लास्ट में वो आके बैठ के हमको पोस्ट डेटेड चेक दिया है और एफिडेविट पेपर में साइन किया है और हुआ है। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता, केटी रोड तरी मोहल्ला में रहते हैं। অন্যদিকে এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেছেন কাউন্সিলর গোলাম সারওয়ার। सर बेबुनियाद इल्ज़ामात इसका मसला ये है कि एक कॉरपोरेशन, चूँकि वो कॉन्ट्रैक्टर है और किसी काम के सिलसिले में दीपक गुप्ता से वो फ्रेंडली लोन लिया था कि ये काम, चूँकि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप ज़रा सा पैसा दे दो, तो शायद पैसा दिया था उसको। और ये अक्सर उससे तगादा कर रहा था, तो वो अक्सर वो बता रहा था कि भाई पेमेंट हुआ ही नहीं, तो वो शायद कॉरपोरेशन से शीट वगैरह निकाल करके दिखाया कि भाई आपका तो पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब उसको शीट दिखाया तो शर्मिंदा हो गया, बोला कि ठीक है मेरे पास तो अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है, हम आपको 2 पार्ट में उसको दे देते हैं। तो वो एक तो एग्रीमेंट भी किया, अपना एग्रीमेंट अपने बेटा को व्हाट्सएप पर भेजा, उसका बेटा उसको कंफर्म किया, कुछ डिलीट करने के लिए कहा, तमाम चीज़ करने के बाद वो साइन करके दिया। और जहाँ साइन किया वो मेरे केटी रोड के वो साइबर में बैठ करके उसका फुटेज है, तमाम फुटेज देख लीजिए, ना उसका हाथ फ्रैक्चर है, ना उसको कोई थ्रेट कर रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जब वो कंप्लेन किया है तो इन्वेस्टिगेशन हो, क्या सच्चाई है सब आ जाएगा। कहा गया कि 8 लाख रुपए का चेक पे साइन कराया गया जबरदस्ती। 8,40,000 का। तो जबरदस्ती का क्या मामला रे भैया, चेक लेकर के आए थे, चेक तो आप ही मंगाया ना, उसका पैसा तो आप ही बोला ना कि दोनों हम एक साथ, पूरा पैसा एक साथ हम नहीं दे सकते उसको। आप खुद कह रहे हैं कि एक बार हम देंगे 50%, 3 महीने के बाद का डेट में, दूसरा हम 6 महीने के बाद के डेट में। तो इसमें और तो कुछ मसला था नहीं। बोला गया अब कि आर्म्स भिड़ाकर इस तरह से। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, उसका तो जवाब हम लोग नहीं दे सकते। अब जो आप कंप्लेन किया है तो ये इन्वेस्टिगेशन का बात है। उनका कहना है कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने अपने घर में बैठा कर उनको मारधर किए, उसके बाद में उसका वो दबाव में आकर सही किया वो। तो फुटेज देख लीजिए ना, देख करके आपको अंदाजा लगता है अगर ऐसा तो आप बोलिए। यहाँ जहाँ पर वो दस्तखत कर रहा है बैठ करके, वहाँ पे मालूमात कर लीजिए कि भाई उसको कोई मारा, थ्रेट किया, वहाँ पर कौन लोग थे, कैसे किया, उस वक्त उसका हाथ टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था, तमाम बात मालूमात हो जाएगा। शासक दल के नेता कह रहे हैं कि आप जिस तरह से एक काउंसिलर होकर इस तरह से आप आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर कल वो लोग मेयर को डिपुटेशन भी देंगे, इसको लेकर आपको दे सकते हैं रे भाई, डिपुटेशन देने में एतराज किसको है, आप दीजिए ना। सवाल है कि आपको तो इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत है ना। आप कोई किसी पर कोई अगर इल्जाम लगा रहा है तो इसका क्या हल है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी हो कि बात में सच्चाई क्या है। अब संजय साहा लड़का का जो इसका नाम है, उसके जिंदगी में मेरे ख्याल से कभी एक तो 290 भी केस नहीं हुआ होगा। उसको वो खुद आदमी बोलता है कि चले जाओ, मेरा बेटा देगा, चेक ला करके हमको दे दो, यहाँ हम इसको दे दे रहे हैं। वो लड़का जाता है, ला करके सिर्फ उसके हवाले कर देता है, इतने ही इन्वॉल्वमेंट है उसका, उसका नाम आप दे दिया। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जहाँ पर आप साइन किया वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर कौन लोग थे, किनके प्रेशर में आप साइन कर रहे हैं। जो भी हुआ ये आपके निगरानी में हुआ था सही? ना हम तो मौजूद भी नहीं है, हम तो मौजूद भी नहीं। जहाँ साइन हुआ तो फुटेज में आप देख रहे हैं ना कि कहाँ पे साइन हुआ, तो ये तो जरूर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वहाँ कौन साइन कराया, कौन मौजूद था, कौन उसको मारा, कौन धक्का दिया, XYZ तमाम इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। इल्जाम लगाना तो कोई बात नहीं है, और कुछ लोगों को तो मौका चाहिए कि भाई एक मौका मिला है, इस मौका में अगर जोड़ दे गुलाम सरवर को तो जो वो परेशान किए हुए हैं कॉर्पोरेशन में वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा। इस सबसे कुछ होने जाने को नहीं है। এই প্রসঙ্গ যখন চলে আসে আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র পরিষদ তথা আসানসোল উত্তর ব্লক সভাপতি তৃণমূলের গুরুদাস চ্যাটার্জির কাছে, তিনি বলেন এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং পরবর্তী স্টেপটা নেওয়া হবে। কি বলেছেন সেটাও শুনুন। আমরা এফআইআর করতে বলেছিলাম, আগামী দিনে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে, যে একজন লোক তাকে কি কারণে মারা হলো, এবং আমাদের তিনি পার্ষদ মানে কাউন্সিলর, একটা কাউন্সিলর হওয়ার পরে আমরাও প্রায় 25 বছরের কাউন্সিলর, আমরা জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো লোকের সঙ্গে অপব্যবহার কি কোনোদিন আমাদের নামে ব্যাড রিপোর্ট কিছুই শুনবেন না।
তো আমার তো মনে হয় অবিলম্বে তার শাস্তি হওয়া দরকার। আমরা কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে কাল তৃণমূলের তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন দেবো নিজেরাই এর মাধ্যমে যে এই পার্ষদকে হয় সাসপেন্ড নাহলে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। পার্ষদের কি নাম আছে এটা? গুলাম সরোবর এবং তার চেলা চামুন্ডা দু একজন আছেন, তারা মিলে এইসব করেছেন কাজ কুকর্ম।